Hello friend, we have seen in the last lecture ideal voltage source and the practical voltage source and also difference between these two. Now in this lecture I am going to talk about the ideal current source and the practical current source. Now let's start with the ideal current source. Let us consider a current source. Here arrowhead is upward, current source is I. Here is the point A and here is the point B. To this current source, a one load resistance is connected. That is RL. Now the circuit is closed. Therefore, the current is flowing through the load resistance RL is IL, having polarity positive and negative. So, because of this IL, a voltage drop VL is developed across the resistance RL. This is VL is developed across the resistance RL. Now this VL is equals to IL into RL. This is given by the Ohm's law. Now here IL is equals to VL upon RL. ठीक है, अब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I होगा, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है यहाँ से भी I होगा और यहाँ से जो फ्लो हो रहा होगा वो भी I होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और कनेक्शन है नहीं. सो वी कैन से दैट IL इज इक्वल्स टू I. इसे समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक IL is equals to I is equals to 5 ampere. Here IL, RL and VL. IL 5 है. If I am considering RL as 1 ohm, then VL we will get as a 5 volt. Now this IL is same 5 ampere. Now if I am considering RL is 10 ohm, then we will get VL as 50 volt. If IL is 5 same and RL I am considering it is 100, then we will get VL as 500 volt. अब मैं ये प्लॉट करता हूँ एक IL और VL के ग्राफ पे. Here the independent quantity is VL and the dependent quantity is IL. For 5 value of 5 volt, the IL is 5. For 50 volt, IL is 5. For 500 volt, IL is 5. If I am joining this point, I will get a straight line. That means the IL is equals to I is equals to constant. तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द VL I will get IL as fixed and that is decided by the current source I. ठीक है, यहाँ पे IL कांस्टेंट होगा और कितना होगा, IL is equals to I which is current source. ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड, प्रैक्टिकल करंट सोर्स. Practical current source. Here I am considering a current source
having arrowhead up. This is I. Here is the point A, and here is the point B. And to this current source, I am connecting a very large resistance RSH, that is shunt resistance. This part is a practical current source. To this current source, I am going to connect one load resistance RL. Now current flowing through this load resistance is IL, having polarity positive and negative. And through this RSH, the current flowing is ISH. Because of this IL, the load voltage is developed across the resistance RL. VL is developed across the resistance RL. So this VL and the voltage across this RS resistance is same. So here the voltage is VL. देखो अब यहाँ पे ये RSH जो शंट रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस RL. तो यहाँ पे मैंने आपको पैरेलल कनेक्शन में बताया था वोल्टेज तो सेम होगा लेकिन करंट डिफरेंट होगा थ्रू दिस एंड थ्रू दिस रेजिस्टेंस. तो हम बोल सकते हैं कि IL यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल्स टू I होगा. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा करंट में IL में. IL इज़ नॉट इक्वल्स टू I, देयर इज़ सम ड्रॉप इन अ करंट. तो वो ड्रॉप कितना होगा वो देखना है. तो वो ड्रॉप कितना होगा IL इज इक्वल्स टू I नहीं है, कितना ड्रॉप होगा यहाँ से ISH फ्लो कर रहा है माइनस ISH, तो इतना ड्रॉप होगा. तो ये ड्रॉप कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट VL इज इक्वल्स टू ISH इंटू RSH. तो मुझे ISH की वैल्यू चाहिए. ISH इज इक्वल्स टू VL अपॉन RSH. ठीक है, तो इतना अमाउंट का ड्रॉप यहाँ पर IL में होगा. IL इज इक्वल्स टू I माइनस VL अपॉन RSH. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ. VL इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड IL इज डिपेंडेंट क्वांटिटी. ठीक है, आइडियल करंट सोर्स के लिए स्ट्रेट लाइन थी, दैट इज IL इज इक्वल्स टू I, बट फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स देयर इज अ ड्रॉप इन करंट. तो वो ग्राफ ऐसे आएगा. ठीक है, ये प्रैक्टिकल के लिए हो गया. ठीक है, तो ये ड्रॉप कितना है VL डिवाइडेड बाय RSH. तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हमेशा ड्रॉप होगा करंट में. इसकी वजह से बिकॉज ऑफ लार्ज शंट रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस RL. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. उसमें हम फर्स्ट देखते हैं करंट टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज करंट टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. Let us consider a practical current source. This is a practical current source. This point is A, this point is B, this is RSH. The current flowing through this RSH is ISH, and here is the current I. Here is positive polarity and this is negative polarity. We will have to convert this practical current source. This is practical current source.
we will have to convert this practical current source into the practical voltage source. So this is the practical voltage source. Here जहाँ पे हमारा एरो हेड होगा वहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे और द बॉटम ऑफ द एरो हेड I will be taken as negative. So this is V. This is RSC. Here point is A and this is point B. अब मुझे ये V कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम V कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? We know that V is equals to I, यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ पर यहाँ तो करंट जा नहीं सकता क्योंकि ये क्लोज नहीं है। यहाँ से जो करंट जाएगा वो I इज इक्वल्स टू ISH होगा, तो दिस ISH इंटू RSH, हमें यहाँ से V मिल जाएगा। अब दिस RSH इज इक्वल्स टू RSC। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा दो पॉइंट याद रखना है। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर्स रिमेन्स सेम, जो भी रेजिस्टर्स है उनकी वैल्यू सेम होगी, बट द ओरिएंटेशन विल चेंज। कब, कैसे? अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है तो वो कन्वर्ट होके पैरेलल में हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल में है तो कन्वर्ट होके सीरीज़ में आ जाएगा और उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर सीरीज़ में है तो उसका कन्वर्जन होके वो पैरेलल में आ जाएगा और उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ये था करंट जो वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया? यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिया हुआ था, मुझे वो कन्वर्ट करना था वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो मेरे पास I था, RSH था। अब I इज इक्वल्स टू ISH होगा क्योंकि ये जो करंट जा रहा है ये I है, ये क्लोज नहीं है तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब मुझे ये V कैलकुलेट करना था। RSC और RSH की वैल्यू सेम होगी बट द ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये RSH इज इक्वल्स टू RSC हो गया। अब V कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? I इंटू RSH, देयरफॉर दिस I इज इक्वल्स टू ISH, देन वी कैन राइट इट एज ISH इंटू RSH। ठीक है, नाउ अब दूसरा देखते हैं, वोल्टेज टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, let us consider a practical voltage source. Here I am drawing a practical voltage source having positive polarity and here is the negative polarity. To this small resistance RSC is connected in series. Here is point A, point B. This is the practical voltage source. We will have to convert this practical voltage source into the practical current source. So this is the arrowhead is positive and bottom is negative. तो ये करंट है। एरो हेड कहाँ करना है मार्क्स? जहाँ पर पॉजिटिव है उस तरफ एरो हेड करना है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दिस इज शंट रेजिस्टेंस RSH। दिस इज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स। मुझे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। अब देखो RSH इज इक्वल्स टू RSC हो गया, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे सीरीज़ में है, यहाँ पे पैरेलल में हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ठीक है, अब मुझे I कैलकुलेट करना है, तो I कैसे कैलकुलेट करेगा? वी नो दैट दिस V इज इक्वल्स टू I इंटू RSC होगा, तो यहाँ से मुझे I मिल जाएगा। I इज इक्वल्स टू V अपॉन RSC।
ठीक है, यहाँ पे आई मिल गया और आर एस एच की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तो ऐसे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।